آپ دیکھ رہے ہیں دنیا بھر کی خبریں۔ آج ہے 10 نومبر 2025 اور یہ رہی آج کی سرخیاں۔ نیتن یاہو کشنر میں ڈیل، غزہ کو نہتہ کرو، امریکہ سے پوچھ کر لو ایکشن۔ یو اے ای نے جھاڑا امریکہ سے ہاتھ، غزہ انٹرنیشنل فورس سے کیا کنارہ۔ ایران نے دی جنگی وارننگ، کہا ہم ہر میدان میں ہیں تیار۔ ایران نے کھینچ دی ویسٹ کے لیے لکیر، کہا ہماری میزائلوں سے ویسٹ رہے دور۔ اسرائیل کا لبنان پر پریشر، حزب اللہ کے ہتھیار گھر گھر ڈھونڈو، لبنانی آرمی نے دی سول وار کی وارننگ۔ اور دلی میں ہوا خطرناک دھماکہ، 10 کی موت، 2 درجن لوگوں کے زخمی ہونے کا دعویٰ، کئی اسٹیٹ میں ہائی الرٹ۔ ان ہیڈ لائنز کے علاوہ بھی ہیں کئی اہم خبریں۔ آزاد بول انڈیا میں آپ کا خیر مقدم ہے، میں ہوں عادل خان آزاد اور یہ ہے اسپیشل پرائم ٹائم شو دنیا بھر کی خبریں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں تفصیل سے خبروں کا یہ سلسلہ، لیکن اس دعا کے ساتھ کہ ہمارے ملک کے دارالحکومت دلی میں جو ایک حادثہ ہوا ہے، دھماکہ ہوا ہے یا حملہ ہے، پتہ نہیں فی الحال، لیکن اس پہ جو لوگ مارے گئے ہیں ان کی روح کو سکون ملے اور ان کے گھر والوں کو صبر دے مولا۔ اور اس کے علاوہ آپ سب سے اپیل ہے کہ ذرا افواہوں سے بچیں۔ اس خبر کو میں شروعات میں اس لیے نہیں لے رہا ہوں، سب سے آخر میں اس لیے لوں گا تاکہ جو بالکل لیٹسٹ اپڈیٹ ہو، فگرز کی یا جو بھی بیان ہیں یا پولیس کی طرف سے جو کہا جائے وہ آپ کو بتا سکوں۔ شروعات کرتے ہیں غزہ سے۔ سب سے پہلے غزہ اپڈیٹس سن لیجئے۔ جنگ رکی نہیں ہے، بس شکل بدل گئی ہے۔ کئی بار کہہ چکا ہوں، ہر بار کہوں گا، لیکن آج اس سلسلے میں، غزہ کی جنگ کے سلسلے میں، سیز فائر کے سلسلے میں نیتن یاہو اور کشنر کی ملاقات ہوئی۔ اسرائیلی حکومت نے بتایا کہ نیتن یاہو اور ڈونلڈ ٹرمپ کے داماد جیرڈ کشنر کے درمیان ہوئی ملاقات میں حماس کو نہتہ کرنے اور غزہ کو ڈی ملٹرائز کرنے پر بات ہوئی۔ یہ بھی طے ہوا کہ سرنگوں میں پھنسے ہوئے حماس کے لڑاکوں کے بارے میں کوئی بھی فیصلہ امریکی انتظامیہ سے صلاح لے کر کیا جائے گا۔ نیسٹ میں ایک نیا بل پیش کیا گیا ہے۔ یروشلم میں اسرائیل کی پارلیمنٹ نیسٹ میں آج ایک کنٹروورشل، ایک وواداسپد بل، اس پر ووٹنگ ہو رہی ہے۔ اس بل میں ان فلسطینیوں کے لیے موت کی سزا کا اختیار مانگا گیا ہے جنہیں اسرائیلیوں کے قتل کا مجرم قرار دیا گیا، یعنی اگر کسی بھی فلسطینی نے کسی اسرائیلی کو تو وہ موت کا حقدار ہوگا۔ ہاں، اسرائیلی کسی فلسطینی کو مار دے تو کچھ نہیں، اسے موت کی سزا نہیں ملے گی۔ امداد جو غزہ میں پہنچی اس کی رفتار سست ہے۔ سیز فائر کے باوجود غزہ میں صرف 270 ٹرک امدادی اور کاروباری سامان لے کر آج داخل ہوئے۔ کریم ابو سلیم یعنی کہ کیرم شلوم اور کسوفیم کراسنگ سے یہ ٹرکس اندر آئے۔ ڈرون حملہ بھی ہوا غزہ میں، بچوں سمیت 2 لوگ شہید ہوئے آج۔ خان یونس کے مشرقی علاقے میں اسرائیلی ڈرون حملے میں 2 فلسطینی جن میں ایک بچہ بھی شامل ہے وہ مارے گئے۔ اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ یہ افراد اس کی فوج کے لیے خطرہ بن رہے تھے، بچہ بھی۔ فی الحال غزہ میں آج کچھ فلسطینی قیدیوں کی لاشیں واپس ہوئیں۔ سیز فائر کے تحت اسرائیل نے 15 فلسطینی قیدیوں کی لاشیں غزہ کے حکام کے حوالے کر دی ہیں۔ ان سبھی کی حالت بے حد خراب ہے۔ ویسٹ بینک کی بھی بات کر لیتے ہیں، جہاں فوجی ایکسرسائز شروع ہو رہی ہے یا ہو گئی ہے۔ قبضے والے ویسٹ بینک میں 3 روزہ فوجی مشقیں یعنی کہ ملٹری ایکسرسائزز شروع کر دی گئی ہیں IDF کی طرف سے۔ اسی دوران نابلس کے پاس اسرائیلی سیٹلرز نے فلسطینی چرواہوں پر حملہ کیا، جیسے وہ روز کر رہے ہیں۔ یہ تھی غزہ کی اور فلسطین کے دوسرے حصے یعنی ویسٹ بینک کی کچھ بڑی اپڈیٹس۔ اب تفصیل سے خبریں آگے بڑھاتے ہیں۔ غزہ میں انٹرنیشنل فورس سے UAE نے کنارہ کر لیا ہے۔ اسرائیل کے اخبار تو اسے اپنے لیے دھکا بتا رہے ہیں کہ UAE کو آنا چاہیے تھا۔ غزہ میں قائم کی جانے والی انٹرنیشنل فورس کو لے کر UAE نے صاف کہا ہے کہ فریم ورک ہی کلیئر نہیں ہے تو UAE کی شرکت کا سوال ہی نہیں اٹھتا۔ ہم کیوں اپنی فوج بھیج دیں جب آپ کا فریم ورک کلیئر نہیں ہے؟ کب تک ہے؟ کیوں ہے؟ افغان وائس ایجنسی یعنی AVA کے مطابق UAE کے پریزیڈنٹ کے صلاح کار انور گارگش نے ابوظہبی اسٹریٹجک فورم میں کہا کہ UAE کو اب تک کسی اسٹیبلائزیشن فورس کا کوئی کلیئر روڈ میپ نہیں دکھا ہے۔ ایسے حالات میں ہمارا اس فورس کا حصہ بننا ممکن نہیں ہے، ہم اپنے فوجی غزہ میں نہیں بھیجیں گے۔ حالانکہ گارگش نے یہ بھی کہا کہ UAE ہر اس پولیٹیکل کوشش کو سپورٹ کرے گا جو امن کی طرف بڑھے گی اور ہیومینیٹیرین ایڈ دینے میں آگے بھی رہے گی۔ ہم ہر اس کوشش کو سپورٹ کریں گے اور ہم خود بھی ہیومینیٹیرین ایڈ بڑھ چڑھ کر دیتے رہیں گے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ غزہ جنگ کی شروعات سے لے کر اب تک یونائٹڈ عرب ایمریٹس نے غزہ کو $2.57 بلین کی مدد دی ہے، لگ بھگ $2.5 بلین کی بڑی مدد ہے۔
दोस्तों, ये इंटरनेशनल फोर्स दरअसल डोनाल्ड ट्रंप के उस सीज फायर प्लान का हिस्सा थी जिसमें अरब और मुस्लिम मुल्कों से फौजें भेजने की बात की गई थी। इन मुल्कों में मिस्र, कतर, तुर्की और यूएई का नाम लिया गया था। पिछले हफ्ते डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया था कि स्टेबलाइजेशन फोर्स बहुत जल्द गजा में तैनात होगी, लेकिन अब यूएई का ये बयान साफ दिखा रहा है कि अरब दुनिया इस प्लान से दूरी बना रही है। याद रहे कि यूएई ने 2020 में कब्जा परस्त इसराइल से रिश्ते नॉर्मलाइज किए थे जब ट्रंप व्हाइट हाउस में थे, और अब वही ट्रंप इस गजा फोर्स के सबसे बड़े प्रमोटर हैं और यूएई इस फोर्स से पीछे हट रहा है। ईरान ने एक बड़ा ऐलान किया है, कहा है कि हम हर मोर्चे पर फौजी ताकत बढ़ा रहे हैं। एक तरीके से ईरान का जंगी ऐलान है। तेहरान में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी एससीओ के मेंबर मुल्कों की चौथी इंटरनेशनल मिलिट्री मेडिसिन कॉन्फ्रेंस के दौरान ईरानी फौज के डिप्टी कमांडर रियर एडमिरल हबीबुल्लाह सैयारी ने कहा कि ईरान हर फौजी शोबे में अपनी सलाहियत मजबूत कर रहा है और ये उसकी हमेशा की स्ट्रेटजिक डायरेक्शन रहेगी। सैयारी ने कहा कि खतरे हर रोज़ अपनी शक्ल बदलते हैं, खतरे हर रोज़ बदलते हैं, इसलिए हमें हर वक्त तैयार रहना होगा हर खतरे से निपटने के लिए। अगर हम मजबूत हैं और हमारे पास डेटरेंस पावर है तो हमें और हमारी कौमी दिलचस्पियों पर कोई हाथ डालने की हिम्मत नहीं कर सकता। उन्होंने बताया कि ईरानी फौज की एयरफोर्स, नेवी, ग्राउंड फोर्स, एयर डिफेंस और साइबर कमांड को लगातार अपग्रेड किया जा रहा है। जैसे जैसे दुश्मन ताकतवर हो रहा है, हम उसी ताकत से निपटने के तमाम ऑप्शंस पर काम कर रहे हैं। सैयारी ने आयतुल्लाह अली खामनेई के उस पैगाम का भी हवाला दिया जिसमें कहा गया कि हर फौजी शोबे में ताकत हासिल करना वक्त की ज़रूरत है। ईरानी कमांडर का साफ कहना था, हम हर मैदान में तैयार रहेंगे, चाहे ज़मीन पर जंग हो, हवा में हो या साइबर स्पेस में, ताकि दुश्मन हमारी सरहदों की तरफ देखने की भी हिम्मत न कर सके। ईरान से जुड़ी एक और खबर है, ये भी एक सख्त बयान है और कहा गया है इस बयान में कि हमारे मिसाइल्स पर वेस्ट का कोई हक नहीं है, वेस्ट इनसे दूर रहे। ईरान ने साफ साफ अल्फाज में कह दिया है कि उसका मिसाइल प्रोग्राम किसी भी पश्चिमी मुल्क, किसी भी मगरबी मुल्क का मामला है ही नहीं। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी और आयतुल्लाह अली खामनेई के बेहद ख़ास अली लारिजानी ने कहा कि इस मसले को बार बार उठाना अमेरिका और यूरोपीय मुल्कों की हिटलर शाही सोच को उजागर करता है। तेहरान में एक कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए लारिजानी ने कहा कि ईरान और वेस्ट के ताल्लुकात को समझने के लिए ये देखना ज़रूरी है कि वेस्ट अमन नहीं बल्कि ताकत के ज़रिए दबदबा कायम करना चाहता है। उन्होंने कहा कि वेस्टर्न रेशनलिज्म का नतीजा दुनिया में दो बड़ी जंगें और आज का बेयकीनी भरा दौर है और ये सब दुनिया देखती है। लारिजानी का सीधा जो पैगाम था वो ये कि हमारी फौजी ताकत हमारी कौमी सलामती का ज़रिया है और इस पर किसी गैर मुल्क को बोलने का कोई हक नहीं है, लिहाजा स्टे अवे। इसराइल ने एक बड़ा अजीब किस्म का प्रेशर क्रिएट किया है लेबनान पर कि हिजबुल्लाह के हथियार घर घर ढूंढो और उसे तबाह करो, उसे निहत्ता करो। लेबनानी आर्मी ने मना कर दिया, बोली सिविल वॉर छिड़ जाएगी बाबा, क्या कर रहे हो। इसराइल ने लेबनान की फौज पर प्रेशर डालना शुरू कर दिया है कि वो साउथ लेबनान के घरों में घुसकर हिजबुल्लाह के हथियारों की तलाशी ले ताकि ईरान सपोर्टेड इस ग्रुप को पूरी तरह से निहत्ता किया जा सके। ये इसराइल के लफ्ज़ हैं। रॉयटर्स को 3 लेबनानी सिक्योरिटी अफसरों और 2 इसराइली अफसरों ने बताया कि ये मांग पिछले कुछ हफ्तों में उठी है, लेकिन लेबनानी आर्मी ने सख्ती से इस मांग को ठुकरा दिया। लेबनान की आर्मी का कहना है कि घरों की तलाशी जैसी कार्रवाई से सिविल वॉर यानी गृह युद्ध जैसी सिचुएशन पैदा हो सकती है और उनकी हल्के हल्के चल रही डिसआर्ममेंट स्ट्रेटजी पटरी से उतर जाएगी। जो हम आसानी से कोशिश कर रहे हैं कि हिजबुल्लाह के हथियार हमारे हाथ में आ जाएं, वो सब मिट्टी में मिल जाएगा जो तुम चाह रहे हो अगर वो कर दिया तो। असल में लेबनानी फौज को भरोसा है कि साल 2025 के आखिर तक वो साउथ लेबनान को हिजबुल्लाह के हथियारों से क्लियर जोन डिक्लेयर कर सकेगी, जैसा कि पिछले साल की तबाही भरी इसराइल हिजबुल्लाह जंग के बाद हुए ट्रूस डील में तय हुआ था। यानी लेबनानी फौज को लगता है वो हिजबुल्लाह के हथियार इस साल के आखिर तक छीन लेगी। फौज के ऑपरेशन में अब तक 50 से ज़्यादा टनल्स यानी सुरंगों और सैकड़ों हथियार बरामद हो चुके हैं, सुरंगें बरामद हो चुकी हैं, जिनमें 50 से ज़्यादा इन हथियारों में गाइडेड मिसाइल्स भी शामिल हैं। ये तमाम बातें जो ऐसे सिविल सोर्सेज ने बताई हैं, लेबनान के सोर्सेज ने,
जो इन ऑपरेशनों की रिपोर्टिंग में शामिल रहे थे जब लेबनानी फौज ये रिपोर्टिंग कर रही थी। यानी एक तरफ इसराइल का प्रेशर बढ़ रहा है और दूसरी तरफ लेबनान की फौज कह रही है हम हथियार हटाने को लेकर वक्त ले रहे हैं, लेकिन अपने मुल्क में आग नहीं लगाएंगे। इसराइल से कहो अपनी जो राय है वो और जो प्रेशर है उसको जो है अपने पास रखें। कुछ चीज़ें यहाँ से लिए लेते हैं क्योंकि कुछ बड़ी हेडलाइन है और भारत में आज एक बड़ा ब्लास्ट हुआ दारुल हुकूमत दिल्ली में। आज तक की हेडलाइन है दिल्ली ब्लास्ट में अब तक 10 की मौत, 24 ज़ख्मी। NIA NSG मौके पर मौजूद। अब NIA NSG मौजूद है तो समझिए बात दूसरी भी हो सकती है, क्योंकि 10 नवंबर को ही हरियाणा में जो है 2 कश्मीरी डॉक्टर बताया गया पकड़े गए हैं। अभी हम आपको वो भी बताएंगे। खैर, दूसरी हेडलाइन देखिए, भास्कर की भी हेडलाइन है, हमें हर किसी की हेडलाइन देखनी है। यहाँ आंकड़ा कुछ बढ़ गया है। दिल्ली में लाल किले के पास चलती हुई कार में धमाका हुआ। लाल किले के सामने जो मेट्रो गेट नंबर 1 है, जो लोग दिल्ली गए होंगे वो जानते होंगे, उसके पीछे लाजपत राय मार्केट है। तो 11 लोगों की मौत हो गई है, ये भास्कर कह रहा है, दैनिक भास्कर, और 24 लोग यानी 2 दर्जन लोग ज़ख्मी हुए हैं। हिंदुस्तान की कई स्टेट्स में हाई अलर्ट है, दिल्ली, मुंबई जो बड़े बड़े शहर हैं उनमें भी, और राजस्थान, उत्तर प्रदेश जैसी बड़ी स्टेट्स में भी हाई अलर्ट है। और थोड़ी देर में ये कहा जा रहा है, अब कह रहे हैं जब तक आप ये देखेंगे खबर ये हो चुकेगा कि अमित शाह, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मौके पर मुआयना करने पहुंचेंगे, देखेंगे क्या हुआ है। ये हिंदुस्तान में ब्लास्ट की शक्ल में बहुत सालों के बाद एक बड़ा इंसिडेंट हुआ है, बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ है सर। अभी ये नहीं पता चल सका है चलती कार में ये ब्लास्ट किसी CNG सिलेंडर ब्लास्ट की वजह से हुआ या कार में कुछ ऐसा एक्सप्लोजिव मटेरियल रखा हुआ था पटाखे बनाने के या किसी भी चीज़ का जिसमें ब्लास्ट हुआ, या ये कोई बॉम्ब ब्लास्ट था। अभी ये क्लियर नहीं कर रहे हैं। आप देख रहे होगे, खबर तब तक हो जाए मुझे नहीं पता। अभी एक और हेडलाइन है इसी में, दिल्ली कार ब्लास्ट की 15 तस्वीरें इन्होंने कहा है हम कोई तस्वीर नहीं दिखाएंगे। दैनिक भास्कर ने कहा है इसमें 10 लोगों की मौत जब तक ये कह रहे थे। अभी ये खबर तो अपडेट 11 की हो चुकी। लोगों के बदन के टुकड़े दूर जाकर गिरे, धमाके की चपेट में आई कई कारों के परखच्चे उड़े। बहुत बहुत बुरा और बड़ा ब्लास्ट है सर ये। इससे पहले आज ही खबर आई थी कि 2900 किलो एक्सप्लोजिव्स, लखनऊ की लेडी डॉक्टर का ट्विस्ट, जैश से रिलेशन, फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल के बड़े खुलासे। ये इन्होंने हेडलाइन NDTV इंडिया ने बनाई है। 2900 किलो एक्सप्लोजिव्स बरामद हुआ है, 20 टाइमर, वॉकी टॉकी, असॉल्ट राइफलें, इन समेत कई एडवांस हथियार जो हैं दिल्ली से सटे लगे, करीब में ही बिल्कुल लगते, फरीदाबाद जो हरियाणा की सिटी है वहाँ से जो ये बरामद हुए हैं। और कश्मीरी डॉक्टरों को पकड़ा गया है, 2 जवान ये कश्मीरी डॉक्टर हैं, इनके पास बताया गया ये सब बरामद हुआ है। और इनके साथ ही उत्तर प्रदेश की दारुल हुकूमत लखनऊ से एक फीमेल डॉक्टर को पकड़ा गया है, एक खातून डॉक्टर को, और कहा गया है कि उनके इनसे जो है वो लिंक थे। तो 8 लोग कुल इसमें गिरफ्तार हुए हैं। हथियारों की भी खैर तस्वीर दिखाई है, वो क्या अभी हम आपको दिखाएं। ये हालात हैं इस मुल्क के इस वक्त, काफ़ी ज़्यादा हाई अलर्ट पर मामला है। और जिस रोज़ ये लोग पकड़े गए उसी शाम 6:55 पर लाल किले के सामने ब्लास्ट हो जाना बड़ा मसला है। अब ये देखना है कि इन लोगों का क्या कहना है या इनके बारे में अभी और क्या बयान आते हैं सामने। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।